السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کے گروپ 1 امتحانات کے عبوری حکم پر سپریم کورٹ نے مداخلت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے گروپ 1 تقررات پر عبوری حکم دیا تھا، اس لیے اس مرحلے پر سپریم کورٹ مداخلت نہیں کر سکتی۔ انوش نامی شخص نے گروپ 1 تقررات کے خلاف سپریم کورٹ میں چیلنج دائر کیا تھا۔ اس معاملے کی سماعت جسٹس سوریہ کانت کی قیادت میں بینچ نے کی۔ عدالت نے واضح کیا ہے کہ ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ اس معاملے کی سماعت اس مہینے کی 15 تاریخ کو کرے گی، اس لیے فی الحال مداخلت نہیں کی جا سکتی۔ یاد رہے کہ اسی کیس میں ایک اور شخص کی جانب سے دائر کی گئی درخواست پر 2 دن قبل سپریم کورٹ نے 2 دن کے لیے مداخلت کرنے سے انکار کیا تھا۔ اب دوبارہ سپریم کورٹ نے یہی موقف دہرایا ہے، جس سے تلنگانہ حکومت کو ایک اور راحت نصیب ہوئی ہے۔ شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا گارمنٹس لایا ہے دھماکے دار ویڈنگ سیزن آفر، جہاں ہر لباس میں ہے شان اور انداز۔ ریڈی میڈ شیروانی، ریڈی میڈ سوٹ، ریڈی میڈ بلیزر اور ریڈی میڈ انڈو ویسٹرن کی خریداری پر پائیے 30% تک کا زبردست ڈسکاؤنٹ۔ اسٹیچنگ کے لیے ٹینشن چھوڑو، شیروانی، جودھ پوری اور بلیزر کی اسٹیچنگ صرف 1499 روپے میں، 2 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 1999 میں، 3 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 2999 میں۔ یہ ہے اصلی کلاسی ڈیل۔ ہر ڈریس کی کلودنگ فیبرک کی خریداری پر بھی پائیے 20% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ ریڈی میڈ پلین کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹399، ڈیزائنر ریڈی میڈ کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹799۔ کرتا پیجامہ اور پٹھانی کا فیبرک خریدنے پر اسٹیچنگ بالکل فری، اور بچوں کے لیے کرتا، پٹھانی، توپ اور شیروانی پر 25% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ شادی ہو یا کوئی خاص موقع، صفا گارمنٹس کے ساتھ بناؤ سب سے خاص۔ یاد رکھیے، شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا گارمنٹس، ٹوری چوکی ایکس روڈ، حیدرآباد۔ تلنگانہ کے 6 اضلاع میں اس مہینے کی 12 تاریخ کو بچوں کو پولیو خوراک پلائی جائے گی۔ محکمہ صحت کے مطابق یہ مہم حیدرآباد، رنگا ریڈی، میڈچل، سنگا ریڈی، ہنمکنڈا اور ورنگل کے شہری مراکز میں منعقد کی جائیں گی۔ اعلیٰ عہدیداروں نے بتایا کہ ملک میں آخری پولیو کیس 2011 میں اور ریاست تلنگانہ میں 2007 میں درج کیا گیا تھا۔ تاہم گزشتہ 3 برسوں سے پاکستان اور بنگلہ دیش میں پولیو کے کیسز سامنے آنے کے بعد وہاں سے لوگوں کی آمد و رفت کے پیش نظر مرکزی وزارت صحت نے ملک بھر کے 290 اضلاع میں خصوصی مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی منصوبے کے تحت تلنگانہ کے 6 اضلاع کا انتخاب کیا گیا۔ اعلیٰ عہدیداروں نے اپیل کی ہے کہ 5 سال سے کم عمر تمام بچوں کو لازماً پولیو کی خوراک پلائی جائے تاکہ بیماری کے مکمل خاتمے کو یقینی بنایا جا سکے۔ اسپیشل زونل کرائم ٹیم اور فلک نما پولیس نے 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے، جن کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ برآمد کیے گئے ہیں۔ ایک خفیہ اطلاع ملنے پر خصوصی زونل کرائم ٹیم CCS DDA حیدرآباد نے فلک نما پولیس کے ساتھ مل کر 2 ملزمین کو گرفتار کیا، جن کے پاس سے غیر قانونی طور پر دیسی ساختہ ہتھیار یعنی کہ پستول 0.7 mm اور دیگر اسلحہ برآمد کر لیے گئے۔ ملزمان کی تفصیلات بھی درج کی گئی ہیں، جن میں وجے یادو ولد لکھن یادو عمر 25 سال اور لنگم پلی چندا نگر کا ساکن، اور بنٹی کمار یادو ولد مہندر یادو عمر 22 سال سنتوش نگر کا ساکن بتایا گیا ہے۔ ملزمین ریاست جھارکھنڈ کے رہنے والے ہیں، حیدرآباد ہجرت کر گئے اور فلک نما اور چندرن گٹا کے علاقے میں مقامی شراب کی دکانوں اور شراب خانوں میں پھل فروش کے طور پر کام کر رہے۔ 3 ماہ قبل ملزم وجے یادو نے اپنے ایک جانے والے ذرائع سے بہار کے رہنے والے سونو کمار سے دیسی ساختہ ہتھیار خریدا تھا اور اس طرح کا اسلحہ فروخت کرنے کی نیت سے اپنے پاس رکھا۔ وجے یادو نے بنٹی کمار یادو کے ساتھ مل کر منافع کمانے کے لیے ہتھیار کی تصویریں دکھا کر سماج دشمن عناصر کو زیادہ قیمت پر ہتھیار فروخت کرنے کی کوشش کی۔ کانگریس پارٹی نے جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کے لیے اپنے امیدوار کا اعلان کیا۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے نوین یادو کے نام کی باضابطہ منظوری دی ہے۔ جوبلی ہلز میں ضمنی انتخاب 11 نومبر کو منعقد ہوگا۔ یہ نشست BRS کے رکن اسمبلی گوپی ناتھ کے انتقال کے باعث خالی ہوئی ہے۔ بعد ازاں جوبلی ہلز کانگریس کے امیدوار نوین یادو نے TPCC صدر مہیش کمار گوڑ سے ملاقات کی اور انتخابات کے ضمن میں تبادلہ خیال بھی کیا۔
आखिर कब होगी राजा सिंह की गिरफ्तारी? हैदराबाद के गोशा महल रुकन असम्बली राजा सिंह ने मध्य प्रदेश में दशहरे की एक तकरीर में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, जिसके बाद राजा सिंह के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में शिकायत दर्ज कराई गई। राजा सिंह साबिक में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर चुका है, जिस पर उस वक्त के BRS के वज़ीर आला KCR और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने राजा सिंह पर PD एक्ट लगाकर जेल भेजा था। राजा सिंह को तेलंगाना हाई कोर्ट ने शराइत के साथ बेल पर रिहा किया था कि वो इश्तियाल अंगेज तकरीरें नहीं करेंगे। रिहाई के बाद भी राजा सिंह ने अपनी नफरत अंगेज तकरीरें जारी रखी, जो अदालत के शराइत की खुली खिलाफ वर्जी है। पर पुलिस की जानिब से अब तक राजा सिंह को गिरफ्तार नहीं किया है, जबकि तेलंगाना के वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी हैं और राजा सिंह पर 100 से ज्यादा संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। आखिर कब रेवंत रेड्डी हुकूमत राजा सिंह को गिरफ्तार करेगी? खानसास कौंसिल के साबिक चेयरमैन स्वामी गौड़ नजरबंद। खानसास कौंसिल के साबिक चेयरमैन स्वामी गौड़ को राजेंद्र नगर पुलिस ने सुबह घर में नजरबंद कर दिया। TRS पार्टी ने बढ़े हुए RTC किरायों में कमी का मुतालबा करते हुए बस भवन प्रोग्राम का मुतालबा किया था। इस तनाजुर में राजेंद्र नगर पुलिस सुबह सवेरे उनके घर पहुंची और उन्हें घर में नजरबंद कर दिया। इस मौके पर स्वामी गौड़ ने कहा है कि अवाम के मसाइल के लिए लड़ने वालों को नजरबंद करना मुनासिब नहीं। उन्होंने कहा है कि जमहूरियत में इस तरह की हरकतें हुक्मरानों के लिए अच्छी नहीं। उन्होंने कहा कि अवाम को बेहतर RTC सहूलियात फराहम करने के बजाय नरखों में इजाफा करना जुल्म है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत कम अज कम अभी जवाब दे और बढ़ती हुई कीमतों को कम करे। కూడా నీళ్లు మెల్లమెల్లగా వదలకుండా ఒక్కసారి వదిలి బస్ స్టాండ్ ను ముంచే ప్రయత్నం చేశారు. మొత్తం భారతదేశాన్ని చూపించారు. మూసీ నదిలో బస్ స్టాండ్ మునిగిపోతా ఉంది, ఈ బస్ స్టాండ్ ఉండటం అవసరమా అని చెప్పి ఆ బస్ స్టాండ్ ను అక్కడి నుంచి జరిపేసి దాన్ని తీసేసి అక్కడ కాంప్లెక్స్లు కట్టి కరుడుపతలకి ఇయ్యాలి, కాంప్లెక్స్లు కట్టాలి, కోట్లు సంపాదించాలనే ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం నిరసించదగ్గది. దానికి కారణంగానే ఈ రోజు RTC బస్సులను కూడా ఛార్జెస్ పెంచారు. భార్యనేమో ఫ్రీగా ఇవ్వమన్నారు, భర్త దగ్గరనేమో 50 రూపాయలు వసూలు చేశారు. అంటే భార్య పైసలు కూడా భర్త దగ్గరనే వసూలు చేస్తారు. तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में एक खातून टीचर दौरान ड्यूटी दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक MP-UP स्कूल में सेकेंडरी ग्रेड टीचर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाली सुजाता मामूल के मुताबिक सुबह अपनी क्लास में तलबा को पढ़ाने के लिए दाखिल हुई। अचानक उन्हें सीने में शदीद दर्द महसूस हुआ और वो वहीं क्लासरूम में गिर पड़ी। तलबा ने फौरी तौर पर दीगर असातिज़ा को इतला दी, लेकिन जब उन्हें तिब्बी इमदाद के लिए ले जाने की कोशिश की गई तो इस वक्त तक उनकी मौत वाक़ हो चुकी थी। मुतवफ़िया का ताल्लुक़ कोहिर मंडल के पकेडी गमल गांव से था। क्लासरूम के टीचर की अचानक मौत पर साथी टीचर और तलबा पर सख्ता तारी हो गया। सियासी जमातों और नुमाइंदों को मरकजी इलेक्शन कमीशन के रहनुमा उसूलों और क़वायद पर अमल करना चाहिए। पार्टियों और नुमाइंदों को आज़ादाना और शफाफ ज़िमनी इंतखाबात के लिए इलेक्शन हुकाम के साथ ताउन करना चाहिए। जुबली हिल्स असम्बली हल्के के अंदर इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के इनेकाद के लिए एक मॉडल ज़ाब्ते अखलाक जारी किया है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने आज़ादाना, शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए एक मॉडल ज़ाब्ते अखलाक जारी किया। पार्टियों और नुमाइंदों को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी किए बगैर अपना मुकम्मल ताउन फराहम करना चाहिए। अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी हुई तो जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। ज़िमनी इंतखाबात में EVM पर उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीर पार्टियों के उम्मीदवारों की मुजरिमाना तारीख से आगाह करना चाहिए। शेखपेट तहसीलदार ऑफिस में रिटर्निंग ऑफिसर ऑफिस का क़याम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और GHMC कमिश्नर RV कन्नन ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब पर GHMC हेड ऑफिस में सियासी जमातों के रहनुमाओं और नुमाइंदों के साथ मीटिंग की। एल राजू SI ने टीम के साथ कुमाराजीगुड़ा कारवान हैदराबाद के एक इहाते पर छापा मारा और एक शख्स को गिरफ्तार किया जिसका नाम T पुरुषोत्तम शंकर वर्ल्ड मरहूम हरीश शंकर, उम्र 50 साल, पेशा कारोबार वाटर प्लांट साकिन कुमाराजीगुड़ा कारवान हैदराबाद है, जो बगैर किसी एहतियात और दुरुस्त लाइसेंस के मस्कुरा बाला इहाते में गैर कानूनी तौर पर पटाखे का जखीरा कर रहा था, जिससे आसपास के लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। पुलिस ने उसके कब्जे से 1,76,500 रुपए मालियत के अशिया बरामद करी है, जिसमें लड़ी 1 के एक्स्ट्रा पावर 6 पिक, पैराडाइज मैजिक मनी सिंगल और कुरूवी बंडल, स्टैंडर्ड क्रैकिंग स्पार्कलर, आर्ज 20 कलर्स
Comets, Sony Golden Sky Shots, 5K Blast, Pandian's Mayajal, Metro Laser Show 12 Shots, Standard Electric Crackers, Paradise Bijli Crackers, Pop Crackers, Women Black Serpent, Space 36X Color Fox Sky Shots, Color Plus Shot, सोनी रिंग कैप्स वगैरह तमाम क्रैकर्स बरामद कर लिए। इसके अलावा गिरफ्तार शख्स और तमाम जब्त शुदा अशिया को टप्पा चबूतरा SHO के हवाले कर दिया ताकि मजीद कार्रवाई की जा सके। गुड इवनिंग। आज टास्क फोर्स की टीम और टप्पा चबूतरा क्राइम टीम दोनों साथ में मिलके एक पर्सन, उसका नाम जो है पुरुषोत्तम कुर्माजीगुड़ा कारवान का, उसमें उसके पोजीशन से जो पिछले साल का जो बचे हुए जो क्रैकर्स इन्हें बेचने की कोशिश कर रहे, वो डंप करके रखे हैं, इसलिए वो पूरा चीज़ कर लेके उसके ऊपर एक केस लगा रहे। और एक दूसरा केस जो है क्राइम टीम, टप्पा चबूतरा क्राइम टीम मिलके एक विजेंद्र सिंह बोल के आर्य समाज के कारवान के है, उनके पास भी एक क्रैकर्स का घर में डंप करके रखे से बेचने के लिए, तो उसको भी हम बरामद करके केस रजिस्टर कर, ये 2 केसेस हुए हैं। और भी हमारे को जो इन्फॉर्मेशन आए तो घर में रखना, ये फायर क्रैकर्स, ये फायर एक्सटिंग्विशर है, कभी भी देखो ये बड़ा दुख की प्रभावता हो सकता है, तो इसलिए सारी जनता से हमारा विनती है, और जो क्रैकर्स बेचने वाले के परमिशन लीजिए, परमिशन लेके आप क्रैकर्स और सेफ्टी प्रिकॉशंस पूरा लेके आप सेल करना। तो बिना परमिशंस, बिना प्रिकॉशन मेजर्स आप घर में नहीं रख सकते, इसका और फायर का संभावना बहुत है, तो इसलिए आप जनता से सबसे गुजारिश है, और कुछ है तो इन्फॉर्मेशन हमें दीजिए, हम इसके ऊपर रेड करेंगे, सबके ऊपर हम केस दर्ज करेंगे। केस 1 लाख के ऊपर का है, दूसरा जो है 25,000 का है, 2 केसेस। पुलिस ने 5 ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉडस्टर्स को गिरफ्तार कर लिया है जो कि फेक गेमिंग प्लेटफॉर्म्स बनाते हुए आवाम को धोखा दे रहे थे। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन साइबराबाद की जानिब से उन्हें गिरफ्तार किया गया। साइबर क्राइम पुलिस SOT साइबराबाद ने 5 अफराद को गिरफ्तार किया है जो कि ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड में मुलविस थे और ये सप्लाइंग बैंक अकाउंट्स, सिम कार्ड्स और साइबर गैंग के काम कर रहे थे। मासूम आवाम को मैनिपुलेट करते हुए उन्हें धोखा दिया जा रहा था और उन्हें विक्टिम बनाते हुए उनसे पैसे बटोरे जा रहे थे। गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त डोपाला पोडी नवीन कुमार, वंकादरी संदीप कुमार, चिंतलापाती पृथ्वी रामर राजू और चिंतलापाती पवन वेंकटा नागा भारद्वाज और मामिदी सेट्टी रामांजानेलू के तौर पर की गई है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను.
ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।